بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج ہربل ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو آپ سے بات ہوگی جگر کے حوالے سے کہ امراض جگر جو ہے وہ اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی ہیں، اور ہم کیا ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، کیا ہمارے طور طریقے ایسے بدل چکے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے وہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ خراب کر رہا ہے، بیماریوں کی طرف دھکیل رہا ہے، اور ہمارا جگر جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ فیٹی لیور ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فیٹی لیور جو ہے یہ پھر آگے جگر سکڑنے تک، اور اس کے بعد پھر آپ کو ہیپاٹائٹس اور کینسر تک جو ہے وہ کیسے لے جاتا ہے، چونکہ جگر کا کینسر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں ہو رہا ہے۔ تو اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ خوراک میں ہم روزانہ بلا ناغہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ اور دوستو یہ کوئی 5-6 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس ویڈیو کو آپ جو ہے وہ آخر تک دیکھیں۔ یہ 4-5 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اور اس کے بعد یہ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ یہ آپ کے جگر کو جس نے میٹابولائز کرنا ہے، اور آپ کی پوری باڈی میں سب سے بڑا گلینڈ ہے، آپ کے تمام اینڈوکرائن سسٹم یعنی باڈی کے اندر جتنے گلینڈز ہیں ان ساروں کا کیپٹل ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ تو ہم اپنے جگر کا خیال نہیں کر رہے، جبکہ جو ہمارے دوست حلقہ احباب ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو آپ بھی میرے جگر ہیں، تو میری کوشش ہے کہ آپ اگر میرے جگر ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ خوش دیکھوں، آپ کو تندرست دیکھوں، آپ کو توانا اور انرجیٹک قسم کا دیکھوں۔ اور اسی طرح سے ہم سب کے اندر بھی ایک جگر ہے، اور ہم اپنے جگر کا یعنی خیال نہیں کر رہے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جگر کو کس طرح سے خراب کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، اور وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو میں جن سے ہم اپنے جگر کو، اپنے لیور کو ٹاکسک کر کے کس طرح سے وہ چیزیں ہمارے جگر پہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو دوستو یہ کھانے آپ کا جگر فیل کرتے ہیں۔ ماڈرن ڈائٹ یعنی فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور فروزن فوڈ اور کیمیکل فوڈ کے آنے سے جو ہماری باڈی کا حصہ سب سے زیادہ نقصان میں گیا ہے وہ دوستو ہمارا جگر ہے۔ اس کے بعد گردے ہیں، 12 سال کے بچے کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں دیکھیں 3-4 لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر جو ہے وہ بھی کھل چکے ہیں، جن کا 20-25 سال پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ اور لیور کو ڈیمیج کرنے میں سب سے زیادہ یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان ساری چیزوں میں دیسی اور قدرتی خوراک ایک بھی شامل نہیں، بلکہ یہ قدرتی خوراک اس کا بہترین علاج اور تدارک ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے جب آپ کاربوہائیڈریٹس زیادہ کھائیں گے، یعنی سفید آٹا، تھیلے کا آٹا، اور اس کے بعد روٹی اور چاول اور چینی اور ہائی فرٹوز کارن سیرپ جو کہ یہ پیپسی میں، جوس میں موجود ہوتا ہے، یہ فیٹی لیور کرے گا۔ اس کے بعد ساری بیماریاں جو ہیں وہ شروع ہوں گی، اور اگر آپ نے نیچروپیتھی سے قدرتی طریقہ علاج نہ کروایا تو یہ جگر سکڑنا، لیور سروسس جو ہے جس کو ہم جو ہے وہ کرونک لیور ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یہ اس سٹیج تک پھر جو ہے وہ آپ کو لے جائے گا۔ اور جب دوستو سروسس میں لیور آئے گا تو پیٹ میں پانی بھی پڑ جائے گا، سوجیں پڑ جائیں گی، خون کی الٹیاں شروع ہو جائیں گی۔ پھر بھی آپ کو قدرتی علاج سے ہی نجات جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ طب نبوی و طب قرآنی سے اس کا علاج ممکن ہے، خواہ جگر کینسر تک ہی کیوں نہ پہنچ گیا ہو۔ حالانکہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کے چکر میں ہوتے ہیں جن کا خرچہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ ہے، سرکاری اسپتال میں بھی 50 لاکھ سے زیادہ کا خرچہ ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ لائف سٹائل تبدیل کریں اور یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے
तबाह व बर्बाद कर रहे हैं और साथ साथ आपके रुपए पैसे की तबाही और बर्बादी भी है। अपने बच्चों को खास तौर पर ये चीजें ना दें। जैसे मैंने बताया था कि जिगर जो है ये हमारे जिस्म का डिटॉक्सिफाई ऑर्गन है। ये जो खाना हम खाते हैं उसमें जो जहरीले मादे होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, इसलिए ये बहुत कुर्बानी देता रहता है और इसीलिए अल्लाह ताला ने इसमें रीजनरेशन यानी दोबारा बनने की सलाहियत बहुत ज्यादा रखी है। डैमेज होता है फिर 2-3-6 महीने में बन जाता है। ये बहुत अहम लाइफ ऑर्गन है। इसको सिर्फ जो चीजें डैमेज करती हैं बड़ी बड़ी वो ये चीजें हैं और वो सारी फास्ट फूड, केमिकल है, प्रोसेस फूड है। नेचुरल चीज जिगर को डैमेज नहीं करती, ये लिख लें आप। तो ये जो सोया प्रोटीन है, सोयाबीन है, ये जीएमओ फूड है। जीएमओ कहते हैं इसमें ग्लाइफॉस्फेट, जैसे पहले जमाने में डीटीटी स्प्रे करते थे, ये ग्लाइफॉस्फेट स्प्रे है जो कि वो बेतहाशा करते हैं, वो फूड के अंदर आ जाता है, वो पॉइजन है, जहर है। इसी से फिर कैंसर और सारी बीमारियां दोस्तों मर्ज वजूद में आ रही हैं। तो इसको जो सोया प्रोटीन पाउडर बनाते हैं तो उसमें वो एक हेक्सामिन, एक केमिकल यूज करते हैं। बहुत टॉक्सिक है, ये बहुत प्रोसेस है, बड़ी मुश्किल से इसको बनाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि जीएमओ है और इसको बच्चों के हर फूड में शामिल किया जा रहा है, इसलिए लेबल जरूर चेक किया करें। इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट आएगा तो इसको बिल्कुल ना दें। ये बच्चों और नौजवानों को दिया जा रहा है, इसको बिल्कुल उठा के फेंक दें। बड़े बड़े डब्बे मिल रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स भी यूज कर रहे हैं सारे के सारे, और सारे कह रहे हैं इससे परहेज करें। दूसरा फ्रैक्टोज है, यूरिक एसिड की सबसे बड़ी वजह जो है वो दोस्तों फ्रैक्टोज है। फ्रैक्टोज फ्रूट में भी होता है, लेकिन हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप जो आ गया है, जो डब्बों के जूसेस में, पेप्सी में और दीगर कोल्ड ड्रिंक्स में, और खास तौर पर बेकरी की बनी हुई तमाम अशिया में, चॉकलेट में, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि सस्ता है बहुत। इसी से फैटी लिवर हो रहा है। जब फैटी लिवर होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारा कुछ हो जाता है। क्योंकि फ्रैक्टोज ऐसी शुगर है जो कि सिर्फ जिगर में मेटाबोलाइज होती है, बाकी जो ग्लूकोज है वो बॉडी के सारे सेल इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्टोज जब भी आप लेंगे तो जिगर में जाएगी, फैटी लिवर करेगी, सबसे बड़ी वजह ही यही है। और फिर आपको पता है कि शुगर भी नहीं बढ़ाती इससे। जब आप इसको देते हैं खून में चेक करें, ये खून में जाता ही नहीं, ये सीधा जिगर में जाता है। इसका देखें GI 19 है और ग्लूकोज का 100 है, तो इससे आप हिसाब लगा लें कि ये बहुत टॉक्सिक है, लिवर टॉक्सिक करता है। और दूसरा यूरिक एसिड। इसके बाद जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जो मैं हर लेक्चर में बता रहा हूं वो वेजिटेबल फैट है। इसको कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। ये वेजिटेबल नहीं है, ये सब्जियों में कोई चर्बी नहीं होती, कोई घी नहीं होता, ये सीड ऑयल है, ग्रेन ऑयल है। जैसे सोया वगैरह, कॉर्न है, मकई का तेल, सोयाबीन है, और ये कॉटन सीड ऑयल है, सनफ्लावर सीड ऑयल है। ये सारी चीजों को केमिकली ट्रीट किया जाता है दोस्तों, इसको हजारों डिग्री के ऊपर, इसलिए ये टॉक्सिक हो जाते हैं। इसमें ओमेगा 6 जो है वो बहुत बढ़ जाता है और वो बहुत टॉक्सिक है, इन्फ्लेमेटरी है। मैं कहता हूं सब कुछ इस्तेमाल कर लें आप थोड़ा बहुत, लेकिन इसको जीरो कर लें। इसके बदले में आपको अक्सर बताता रहता हूं कि कोकोनट यानी नारियल ऑयल, जैतून का तेल, देसी घी, देसी मक्खन और सरसों का तेल खास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद है। आप इस पे आ जाएं आप इंशाल्लाह। और अगर कुछ भी ना हो आपके लिए तो आप बैल या दुम्बे की चर्बी, उसका घी बना लें आप, ये बेहतरीन है। और मैं आपको बताऊं 72 स्टडी
मेटा एनालिसिस जिसमें बताया गया था कि इसमें कोई फायदा नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये केमिकल अटीट है, जिस्म से ये निकलता ही नहीं है। 600 से लेकर 675 दिनों तक तकरीबन 2 साल तक जिस्म के अंदर स्टक कर जाता है और जिगर को डैमेज करने में इसका रोल सबसे ज्यादा है। और दूसरा रिसेंटली आंखों का अंधापन, ये जो 50 साल के बाद होता है, सबसे बड़ी वजह ये कुकिंग ऑयल है। इसके बाद ये एक बहुत मशहूर पाउडर है वे प्रोटीन पाउडर, ये बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, सारे नौजवान यूज करते हैं, सारे नौजवान यूज करते हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये जीएमओ से बनता है। वही गाय जिसके बारे में बता रहा हूँ, उसी के दूध को ड्राई करके उसी से ये पाउडर बनाते हैं अलहदा करके। हाईली इन्फ्लेमेटरी है, शुगर में बहुत रोल है इसका, खसूसन टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट है उनमें इसकी बहुत तकलीफ है। और दूसरा फिर इसके साथ स्टीराइड मिक्स कर देते हैं, इससे बहुत टॉक्सिक हो जाता है। केमिकल और शुगर मिक्स कर देते हैं। डेक्सटीरॉन स्टीराइड इससे बहुत टॉक्सिक है। बॉडी बिल्डर्स तो ये बन तो जाती है बॉडी बहुत ज्यादा जल्दी, बाद में इसके नुकसान और भारी कीमत जो है दोस्तों वो उनको चुकाना पड़ती है। मैं अपने नौजवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नेचुरल फूड लें, आप नेचुरल फूड लें, आप बीफ लें, आप देसी अंडे लें, आप मटन लें, आप मटन की यखनी लें, देसी मुर्गी लें, इन चीजों से बॉडी बनाएं। देसी घी और मक्खन, दूध की मलाई लें, नेचुरल बॉडी बनाएं। एक सबसे खतरनाक जो चीज सामने आई है वो है माल्टोडेक्स्ट्रन, ये सिंथेटिक शुगर है। सिंथेटिक शुगर केमिकल लेबोरेटरी में बनाई हुई शुगर है, ये लेबोरेटरी में बनती है, मकई से बनती है, चावल से बनती है, आलू से बनती है, शकरकंदी से बनती है और पता नहीं किस किस चीज से बनती है। याद आया, चुकंदर से भी बनती है। इसका जीआई जो है वो 110 से 119 है, जबकि हमारी देसी शुगर जो है उसका 63 है। तो इससे ये वर्स देन शुगर, यानी शुगर से ये बदतर होता है। ये तमाम मल्टीविटामिन्स में दोस्तों यूज की जाती है। माँ बच्चों के फीडर में, दूध में सीरियलैक जितने आ रहे हैं ये बहुत टॉक्सिक हैं। ये जब लेते हैं आप तो इससे इंसुलिन आती है, इंसुलिन आती है तो फैट यानी बच्चा जो है वो आपका गुगलू मुगलू मोटा ताजा खूबसूरत जाज़बे नजर दिखाई देता है। माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं। बहुत टॉक्सिक है ये, लिवर फैटी कर रहा है बच्चों के लिए खास तौर पे। इसको देखें, कोई भी लेबल पढ़ लें जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा हो, शुगर के नाम को उन्होंने इसका नाम बदल दिया है, तो इसका भी परहेज करें। जिस लेबल पर ये लिखा हो उसको छोड़ दें। और इसके बाद एफ्लाटॉक्सिन्स फंगस एक आता है, जैसे मूंगफली और मकई में ये एक फंगस है दोस्तों, फफूंदी जिसको कहते हैं, वो लग जाती है। ये स्प्रे वगैरह में भी होती है, जिन पर ज्यादा स्प्रे करते हैं बैक्टीरिया मर जाएं तो फिर फंगस ज्यादा ग्रो करती है। लेकिन जो हमारी मूंगफली ऑर्गेनिक आ रही है इसमें ये कम है और हमारी मकई में भी बहुत कम है। और इसके बाद आखिर में सबसे अहम मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको दोस्तों हम चाइनीज नमक या चाइनीज साल्ट भी कहते हैं, जिसको हमारी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया। तमाम फास्ट फूड में, तमाम चाइनीज फूड में ये इस्तेमाल होता है। ये टेस्ट जायके को बहुत बढ़ा देता है। फजूल सी चीज होगी मगर इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आप खाएंगे तो ये 200 टाइम इंसुलिन सक्रीट करता है। जो चीज इंसुलिन बढ़ाएगी फिर वो जाहिर है कि फैटी लिवर करेगी। फैटी लिवर करेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी तो फिर उसके बाद शुगर होगी, तो लिवर को डिटॉक्सिफाई
यानी जिगर को सेहतमंद बनाने के लिए मैं बार बार बताता आ रहा हूं कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, प्याज है, ये बेस्ट हैं, बड़ी तेजी से डिटॉक्सिफाई करते हैं जिगर को। इसलिए फैटी लिवर से बचना है तो ये सब्जियां खाएं। और दूसरा, जैसा कि मैं बार बार आपको हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला भी देता चला आ रहा हूं कि रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। तो जैसा कि आपने किसी सड़क को रिपेयर करना हो तो जब तक आप उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, डाइवर्जन नहीं देंगे, रनिंग सड़क के ऊपर गाड़ियां आ रही हैं, आप सड़क की रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए फास्टिंग यानी जब रोजा रखेंगे फिर लिवर डिटॉक्सिक जो है वो चीजें जो आप खा रहे हैं, जैसे चावल में आर्सेनिक है, ब्रायलर मुर्गी में आर्सेनिक है, बहुत ज्यादा आ रहा है, वो खा रहे हैं, तो फिर जिगर को 16 से 18 घंटे दें ताकि वो डिटॉक्सिफाई कर ले। लेकिन जब आप 2-2 घंटे बाद खाएंगे तो जिगर को टाइम नहीं मिलेगा। जिस तरह सड़क की रिपेयर के लिए गाड़ियां बंद करना पड़ती हैं, आपको उसी तरह फाका फास्टिंग में रोजा सबसे अच्छी और तंदुरुस्ती की तरफ आपको जो है वो लेकर जाता है। 2 चीजें दोस्तों याद रखें, एक जो खुराक सब्जियों की शक्ल में मैंने लेक्चर में आपको अभी बताई, और दूसरा फास्टिंग यानी रोजा। इन पर तवज्जो लाजमी दें, अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, अपना और अपने प्यारों के जिगर का ख्याल रखें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात आपके साथ आखिर पे करता चलूं कि कुरान हकीम में सूरह रहमान की आयत नंबर 11 और 12 यहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं वल हब्बु जुल अस्फ़ वर रेहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वल हब्बो का माना है और भूसे वाला अनाज, यानी जिस अनाज के अंदर भूसा यानी उसके अंदर चोकर, उसके अंदर छान जो है वो मौजूद रहे, उसको कहा गया है कुरान में अल्लाह ने वल हब्बो। और इसको अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, आपकी सीरत मुबारक, आपके उस्वा हसना के पहलुओं पर जब हम नजर डालते हैं तो वहां पे हमें ये बात मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी भी मैदा की बनी हुई कोई चीज जो है वो चखी भी नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देख लें बासियत उम्मत, हम जो है रोजाना सुबह उठते हैं तो अपने दिन का आगाज जो है वो डबल रोटी के कुछ पीस से करते हैं जो कि मैदे की बनी होती है। इसी तरह से कुछ लोग नान खाते हैं, मैदे के बने हुए हैं। इसी तरह कुछ लोग जो है वो रस और बिस्किट से और फ्रूट केक से आगाज करते हैं, तो वो भी जो है मैदे की बने होते हैं। और उसके अलावा सारा दिन हम बेकरी की बनी हुई मुख्तलिफ चीजें, यानी आप कभी हार्ड केक, कभी आप फ्रेश क्रीम केक जो आप लेकर मुख्तलिफ किस्म की हम सालगिरह करते हैं, या वैसे ही चाय के साथ जो हम खाते रहते हैं सारा दिन ये मैदे का इस्तेमाल, ये मैदा मैदे का और इंसान के जिगर का इंतहाई दुश्मन है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी इसको चखा भी नहीं। तो हमें सोचना है कि फिर हम क्या कर रहे हैं। तो आज आपने जो वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको लेक्चर में कुछ चीजें भी साथ साथ दिखाई, इसमें जिन चीजों का जिक्र किया है इनसे अपने आप को बचाइए। इनसे अपने आप को बचाएंगे तो आपका जिगर जो है वो तंदुरुस्त, तवाना, एनर्जेटिक रहेगा। और अगर जिगर में खराबी आना शुरू हो गई तो फिर जिसका जिगर खराब होगा वो फिर कहीं का नहीं रहता। तो इसलिए अपने आप को ठीक कीजिए और अल्लाह ताला के जो अहकामात, जो जिंदगी करने का तरीका, जो सिस्टम और वे ऑफ लाइफ अल्लाह ने दे रखा है उसको इख्तियार कीजिए। सूरह रूम की आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपनी फितरत यानी कानून फितरत पर पैदा किया और उसको सीधा रास्ता दीन यानी जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ दिया। इसी को इख्तियार किए रहो। अल्लाह की मखलूक में
کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے ان تک میں یہ باتیں پہنچانے کی پوری دنیا میں کوشش میں لگا ہوں، اور میں نے اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے جو ہے وہ وقف کی ہوئی ہے۔ اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ریسرچ اسکالر ہربل ڈاکٹر جمیل مہروی کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی ہی اگلی ویڈیو میں کچھ نئے انکشافات کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔